Hello everyone. So today we will continue with our unit 6, and in this today I am going to teach you language ladder, pre-reading portion and reading portion in which we will take half of chapter. Okay. So starting with language ladder. So in language ladder you are going to learn verbs. Okay. So let us start. So first of all, what are verbs? So verbs are the words that tells us actions of person, animal और thing. Okay. So क्या होते हैं verbs? Verbs ऐसे words होते हैं जो हमें किसी भी person, animal या तो फिर थिंग की एक्शन हमें बताए. एक्शंस यानी कि द एवरीडे थिंग्स दैट समथिंग दैट वी डू. लाइक फॉर एग्जाम्पल सी, आई एम टीचिंग यू. आई टीच स्टैंडर्ड फर्स्ट. सो टीच, मैं क्या करती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ यानी कि टीच करती हूँ. सो टीच इज वर्ब. ओके. अदर नेम ऑफ वर्ब इज डूइंग वर्ड्स. वर्ब्स के दूसरा नाम क्या होता है? डूइंग वर्ड्स. ओके. सो देन सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग राइट नाउ, है ना. सो यू लर्न. सो लर्न इज वर्ब. देन राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना. आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो. सो आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो. दैट इज वॉच. So watch is also a verb. Okay. Then we can see some other examples. See, like person. Okay. So let us see examples with person. Person क्या करते हैं? They drink, eat, hear, speak. Okay. Walk, run. So these all are verbs. So क्या जो भी कोई भी चीज़ या कोई भी एक्शन जो हम करें, actions that we do are all verbs. Okay. Then animals क्या करते हैं? Like monkey climbs a tree, है ना. So climb is a verb. Then lion roar, है ना, वो दहाड़ता है. So roar is verb. Okay. So these are the examples of verbs. So again I am repeating, what are verbs? So verbs are the words that tells us actions of person, animals or things. Okay. So in other way we can say the verbs या तो doing words वो होते हैं जो भी वर्क, फॉर एग्जाम्पल वर्क, जो भी चीज़ हम करें, ठीक है, जो भी एक्शन हम करते हैं वो सारी ही क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं. ओके किड्स. सो नाउ वी विल सी फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. सो प्लीज ओपन पेज नंबर 75. सो लैंग्वेज ladder verbs. Okay. The other name of verbs is doing words. So read the sentences. I sing. क्या कर रहा है वो? sing. Okay. I dance. I cook. I bark, है ना. तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी? He is singing, then he is dancing, he is cooking and it is barking, है ना. तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स है sing, dance, cook and bark, वो सब क्या है? वर्ब्स है ना. वो हमें क्या बताते हैं कि ये जो बॉय है, ये डॉग है, जो कर रहे हैं, द थिंग्स दैट दे डू. ओके. दे आर शोइंग अस एक्शंस. सो सिंग, bark, dance and cook, these are action words or verbs or doing words. Okay. Action words such as taste, write, listen, draw, वेग यानी कि वो जो डॉगी होता है वो अपनी टेल ऐसे एक फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऐसे वो वेग करता है ना.
Okay, that is vague. And carry are also verbs. Okay, then Zen climbs a ladder. देखो वो क्या कर रहा है अभी. So he is climbing a ladder, है ना. Climbs. So climbs is action word or doing word or verb. The ball bounces on the floor. तो इसमें bounces क्या है. Verb. I hope in the park. क्या कर रहा है वो. hope कर रहा है. So hope is verb. I read a story book. So read is action word or verb. Okay, so a verb tells us about the action of a person, thing or animal. So क्या होते हैं verbs. Verbs ऐसे words होते हैं जो हमें किसी भी पर्सन, थिंग और एनिमल की एक्शन दिखाते हो, उनकी एक्शन डिस्क्राइब करते हो. ओके किड्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट pre-reading. मीता हैज़ लॉस्ट हर पपी. लॉस्ट यानी कि गुम जाना, यानी कि मीता ने क्या किया कि उसका जो पपी है वो गुम गया है. हेल्प हर टू फाइंड इट. So what we have to do? We have to help Mita. We have to help Mita to find her puppy. Okay. So here a picture is given to us. So with the help of this picture, we have to help Mita to find her puppy. Okay. So here one instruction is given. List the places that the puppy has visited. अब विजिट करना यानी कि कोई प्लेस में जाना. ठीक है, यानी कि वो प्लेस जो है वहाँ पे जाना. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ प्लेसेस दी गई है. ठीक है, ये सारी प्लेसेस है, ये शॉप्स है. दिस ऑल आर प्लेसेस. सो वी हैव टू लिस्ट द प्लेसेस दैट द पपी हैज़ विजिटेड. वेयर डू यू थिंक मीता शुड गो टू फाइंड द पपी. और फिर अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है. ठीक है, और हमें सोचना है कि कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ पे मीता का पपी होगा अभी. ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड इट. वाई डू यू थिंक सो. और वो उस प्लेस में क्यों है वो भी हमें सोचना है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो हियर यू कैन सी. अब सबसे पहले तो देखो कि हम पपी को कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो उसके फुटप्रिंट्स से. फुटप्रिंट्स यानी कि देखो उसके ये क्या है, पैरों के निशान है ना. यस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फुटप्रिंट्स वी विल फाइंड मीता's puppy. ओके, सो सी फ्रॉम दिस वे द पपी हैज़ केम. है ना, देखो यहाँ से पपी जो है वो यहाँ से आया होगा. ठीक है, सो हियर वी कैन सी फुटप्रिंट्स एंड देन सी दिस फुटप्रिंट्स आर गोइंग इनसाइड दिस शॉप. है ना, देखो उसके अंदर जा रहा है. दैट मीन्स दैट दिस इज द फर्स्ट प्लेस दैट द पपी हैज़ विजिटेड. सो सबसे फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी. मार्केट. सो सबसे पहले वो कहाँ गया, मार्केट में. देन अगेन सी द फुटप्रिंट्स आर कमिंग आउट एंड देन द फुटप्रिंट्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो हियर यू कैन सी दैट इट इज barber's shop. It is barber's shop. Okay, so here then the puppy visited barber's shop. Then from this direction again puppy came. Then अब देखो तो और अब उसके फुटप्रिंट्स इस तरफ जा रहे हैं. अब देखो फिर क्या आया, जिम बेकर्स. है ना. एंड देन फ्रॉम देयर अब देखो अब वो सीधा इसके अंदर जा रहा है यानी कि टॉय शॉप में. ठीक है,
तो अब आपको क्या लगता है कि कहाँ होगा मीता का पपी? इन टॉय शॉप? यस, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Mita's puppy would be in toy shop. Why? Because here we can see that these footprints are going inside, but we cannot see that the footprints are coming this way. है ना? हम देख सकते हैं कि जो उसके फुटप्रिंट्स है वो अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो बाहर नहीं आ रहे. So puppy is in toy shop. Yes, clap for yourselves. आप सबने पप्पी को ढूंढ लिया है ना? यस. सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. वन नाइट यानी कि एक रात थी. निधि hears यानी कि सुनना. दिस इज verb or doing word. Strange sound. This is strange. देखो कैसे रीड करोगे? ST यानी कि स्ट, उसमें र, सो स्ट्रे, और उसमें ए, सो स्ट्रेंज. स्ट्रेंज साउंड. ओके. क्रिक क्रिक. अब स्ट्रेंज यानी कि अजीब. तो निधि ने एक दिन वन नाइट क्या सुना? एक अजीब साउंड सुना. कैसा था वो? क्रिक क्रिक. क्रिक मीन्स कि जैसे हमारी फ्लोर्स कैसी होती है? टाइल्स वाली होती है ना. तो कभी कभी जो फ्लोर हो वो वुडन का होता है, यानी कि वुड का बना हो. तो अगर उस पर कोई चलेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा साउंड आए. तो जब भी कोई वुड पर वॉक करे, ओके, वुडन फ्लोर पर अगर कोई वॉक करे तो जो फिर वो साउंड आएगा वो कैसा होगा? क्रिक क्रिक क्रिक. शी गोज यानी कि जाना. टू द लिविंग रूम. टू चेक यानी कि देखना, कुछ जाकर देखना. विथ अ फ्लैश लाइट. फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च. इन हर हैंड. फिर उसने क्या किया? जैसे ही उसे क्रिक क्रिक साउंड सुनाई दिया तो निधि कहाँ गई? लिविंग रूम में गई, चेक करने के लिए, यानी कि देखने के लिए कि मतलब कि वो साउंड है वो किसका है. और वो जब चेक करने गई तो साथ में क्या लेके गई? फ्लैश लाइट, यानी कि ये टॉर्च. दिस इज फ्लैश लाइट. ठीक है. इन हर हैंड. इट इज क्वाइट डार्क यानी कि अंधेरा. एंड एवरीबडी इज फास्ट अस्लीप मीन्स एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं, यानी कि एवरीवन इज इन डीप स्लीप यानी कि जैसे कि कैसे आवाज़ आई तो निधि को पता चल गया तो फिर वो उठ के आई, लेकिन दूसरे सारे वो कैसे सो रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो. सो वो कैसी थी? क्वाइट डार्क. ओके. एंड एवरीबडी यानी कि एवरीवन यानी कि हर कोई, वो कैसे थे? एकदम सोया हुआ था. इज फास्ट अस्लीप. निधि इज फ्राइटन्ड. दिस इज फ्राइटन्ड. ओके. फ्राइटन्ड यानी कि डर जाना. अब क्या हुआ? निधि तो डर गई. शी फाइंड्स नोबडी इन द लिविंग रूम. फाइंड्स यानी कि मिलना. ठीक है. नोबडी यानी कि कोई नहीं. अब वो लिविंग रूम में तो गई लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिला. अब हियर दिस फाइंड मीन्स इट इज शोइंग थे, उसने ढूंढा है ना, लेकिन उसे कोई मिला नहीं. सो दिस इज डूइंग वर्ड और वर्ब. देयर इज कंप्लीट साइलेंस. क्या था? कंप्लीट यानी कि पूरा, और साइलेंस मीन्स एक भी आवाज़ नहीं. साइलेंस. So there is complete silence. She looks यानी कि देखना. So it is a doing verb, doing word. Okay.
behind the book case. अब देखो ये जो बुक केस है उसमें जो ये केस है उसमें क्या है, लॉन्ग ए साउंड है. फिर क्या हुआ कि उसने बुक केस यानी कि ऐसा कबर्ड जैसा होता है, जैसे ओपन कबर्ड, और उसमें शेल्फ्स होते हैं कि जहाँ पे हम बुक्स रखनी हो. ओके, तो दैट इज़ बुक केस. तो उसने उसके पीछे, बिहाइंड यानी कि उसके पीछे देखा. सडनली, दिस इज सडनली. ओके, सडनली यानी कि अचानक से. शी hears a cat meow. फिर उसने क्या किया कि सडनली ही यानी कि अचानक से ही उसने कैट की मियाऊ सुनी. मियाऊ दैट इज द साउंड दैट कैट मेक्स. ओके, निधि श्रिक्स यानी कि स्क्रीम करना, चिल्लाना, उस जोर से चिल्लाई. श्रिक्स इन फियर. अब कैसे अचानक से अगर वो कैट ने आवाज़ की तो क्या हुआ, निधि चीखी, डर से चीखने लगी. एंड जम्प्स ऑन द सोफा. फिर क्या हुआ, वो चिल्लाई, डर गई और सोफे पे उसने जंप कर दिया. ओके, सो टुडे वी विल डू दिस मच पोर्शन ओनली, और जो आगे का रीडिंग है वो हम कल करेंगे. ओके किड्स, सो योर टुडेज होमवर्क इज दैट you have to write new words from your PA2 worksheet. Okay, so this is your PA2 worksheet, and in this you have already given you new words. So from 1 to 12. Okay, strange, crick, flashlight, asleep, frightened, nobody, silence, behind, bookcase, suddenly, meow, and shrieks. So these 12 new words you have to write in your 1A notebook. Okay kids? As per for your convenience, this time I've added new words in your worksheet. Okay, so you have to write these new words from 1 to 12. Okay.